Hello students, I am Aman Joshi from SRS Government Polytechnic College for Girls Ludhiana. Today's third lecture on subtracting equipment. So let's start with the first one. Subtracting equipment. Subtracting means फैलाना. Equipment means उपकरण like articles, instrumentations. Subtracting equipment definition is subtracting is the process of unwinding large rolls of fabric onto long white tables in preparation for cutting each piece of garment. With the automatic subtracting process, the equipment itself controls the fabric tension, fabric placement and rate of travel. Next one is subtracting machines used in garment industry, in which different types of machines and equipments used in fabric spreading process. फैब्रिक स्प्रेडिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं. बेसिकली दे कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज लाइक फर्स्ट वन इज़ मैनुअल स्प्रेडिंग मशीन, सेकेंड वन इज़ सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन्स and third one is fully automatic spreading machines. Either those type of garment spreading machines, various types of spreading machines and equipments also used in apparel industry. गारमेंट को स्प्रेड करने के लिए वेरियस टाइप्स की तरह मतलब अलग अलग टाइप की स्प्रेडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ की जाती हैं इन अपैरल इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल लाइक टाइप्स ऑफ स्प्रेडिंग इक्विपमेंट्स in which spreading table, next one solid bar, next one stationary rack, next one drop in unwinder, next one rolling rack, next one turntable, next one automatic rolling rack, next one automatic turntable, next one tubular knit fabric spreader. इन सभी टाइप्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है विद पिक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद इन फर्स्ट वन स्प्रेडिंग टेबल. First one is spreading table, in which spreading normally requires a flat smooth surface. Spreading and cutting tables are available in standard width. A spreading table should be about 10 inch wider than the fabric width. It may have rails fixed on the top of a spreading table to guide and control the spreader as it moves along the length of the table. With modern high-speed spreading machines, all the drives are synchronized to control the fabric tension. स्प्रेडिंग के लिए नॉर्मली हम रिक्वायर करते हैं फ्लैट सपाट स्मूथ सरफेस मीन्स चिकनी सतह, और कपड़े को फैलाने के लिए और कटिंग करने के लिए जो टेबल है वो चौड़ाई में उपलब्ध होते हैं मीन्स अवेलेबल होते हैं. एक स्प्रेडिंग टेबल की जो चौड़ाई होती है वो 10 गुना वाइडर होती है कपड़े की विड्थ से. टेबल के ऊपर दोनों साइड रेल ट्रैक फिक्स होते हैं जो गाइड और कंट्रोल करने के लिए स्प्रेडर को यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यह टेबल की लंबाई के साथ ही चलते हैं. फैब्रिक में कंट्रोल करने के लिए रिंकल्स को मतलब तनाव को कम करने के लिए सभी ड्राइव्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है. दिस इज स्प्रेडिंग टेबल. नेक्स्ट वन इज सॉलिड बार, in which this kind of spreading by 2 workers is still used. There is no tension control in this type of spreading and hypothetically can be used for any mode of spreading. 2 वर्कर्स द्वारा इस तरह की स्प्रेडिंग अभी भी यूज़ की जाती है. इसमें रिंकल्स पड़ने की सामान्य संभावना रहती है मीन्स नो रिंकल्स कंट्रोल, नॉट इक्वल अलाइनमेंट प्लाइस ऑफ द फैब्रिक, प्लेसमेंट इक्वल नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं रहता फैब्रिक में, और यह किसी भी टाइप ऑफ मोड ऑफ फैब्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस इज सॉलिड बार. नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी रैक, in which this machine has basically 2 uprights fixed at the end of the table. A steel bar is passed through the fabric roll and 2 spreaders, one on each side of the table, pulls the fabric from one end of the table to the end of the spread length. After the fabric ply is aligned and weighted at the end, the spreaders then smooth out any ridges or wrinkles in the fabric and align the fabrics with respect to any one side of the fabric. इसमें एक फ्लैट टेबल के ऊपर दोनों साइड टेबल के एजेस पर हैंडल फिक्स होते हैं. एक स्टील बार मीन्स रोड पास होती है फैब्रिक रोल में, और 2 स्प्रेडर्स कपड़े को फैलाने वाले मीन्स टेबल के दोनों साइड पर होते हैं जो कपड़े को पुल करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द टेबल टू द एंड ऑफ द स्प्रेड लेंथ.
जहाँ तक टेबल की लंबाई होती है। जब कपड़े की परतें एक लाइन में एक वेट में आ जाती हैं एक एंड तक, तब स्प्रेडर कपड़े को स्मूथ करता है, मीन्स रिंकल फ्री करता है, उसमें से रिंकल्स निकालता है कपड़े के किसी भी एक साइड में से। दिस इज स्टेशनरी रैक मशीन। Next one is drop-in unwinder, in which this equipment has a cradle with rollers that enclose a fabric roll. It is most commonly used when the tube in the fabric roll is crushed or too small for the steel bar in a stationary rack. ये जो इक्विपमेंट है इसमें क्रेडल होता है विद रोलर जो कि फैब्रिक को होल्ड करके रखता है अपनी पोजीशन में। ये आम तौर पर यूज़ होता है जब ट्यूब, जो कि एक ट्यूब होता है जो गत्ते का होता है, ट्यूब होता है जिसपे एक फैब्रिक रोल हुआ होता है, वो क्रश हो जाता है, ख़राब हो जाता है और टू स्मॉल हो जाता है फॉर द एक स्टील बार इन अ स्टेशनरी रैक के लिए। दिस इज ड्रॉप इन वाइडर मशीन। नेक्स्ट वन इज रोलिंग रैक, in which in the case of a rolling rack machine it is understood that it rolls down the table length with the fabric roll kept on it. The entire arrangement sits on a rail mounted on both edges of the table and the wheels roll over it. Similar to other rolling machines, the wheels on the far side of machine ride on the top of the opposite edge of the table. The rolling rack is preferably used for spreading. This method has no tension control on the fabric, hence apart from smoothing out wrinkles and aligning the fabric edges, the spreader must cautiously unroll the fabric slightly ahead of the speed that the machine is advanced. इन द केस ऑफ रोलिंग रैक मशीन इसमें यह अंडरस्टूड किया जाता है कि यह टेबल की लंबाई को उस पर रखे कपड़े के रोल के साथ ही रोल करता है। जो रोलिंग रैक मशीन है इसमें अंटायर जो अरेंजमेंट होती हैं, इसमें ये अरेंजमेंट होती हैं कि एक टेबल के बोथ एजेस पर एक रेल ट्रैक होता है जिस पे जो व्हील्स हैं जो टायर रोल करते हैं ओवर इट। सिमिलर टू अदर रोलिंग मशीन्स, जो व्हील्स हैं वो टेबल के बोथ साइड पर होते हैं और राइड करते हैं, चलते हैं ऑन द टॉप ऑफ द ऑपोसाइड, दोनों ऑपोसाइड एजेस ऑफ द टेबल। द रोलिंग रैक इज़ यूज़ किया जाता है फॉर स्प्रेडिंग के लिए। दिस मैथड हैज़ नो टेंशन कंट्रोल ऑन द फैब्रिक। इसमें मतलब जो कंट्रोल्स जो हमने स्मूथनेस लाना होता है, रिंकल्स रिमूव करने होते हैं, एक अलाइन में फैब्रिक एडजस्ट करना होता है, वो प्रॉब्लम जो है टेंशन मतलब कंट्रोल में मतलब इसमें स्मूथनेस नहीं आती, रिंकल्स पड़ जाते हैं, एक लाइन में एजेस नहीं आते, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट स्प्रेडर जो है वो ध्यान से अनरोल करता है फैब्रिक को, ध्यान से उसको बिछाता है, बट यह जो कपड़ा है उस गति से ही चलता है, आगे बढ़ता है जैसे मशीन की चाल होती है। रोलिंग रैक मशीन। Turntable, in which it is another manually operated spreading machine similar to the rolling rack. It is manually pushed down the table and there is no control over fabric tension like the rolling rack. Conversely, as the fabric roll is fixed on a rack that can easily be rotated, the turntable, the ultimate for rotated the turntable. टर्नटेबल मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेडिंग मशीन है जो कि सिमिलर होती है रोलिंग रैक के। टर्नटेबल यह मैनुअल रूप से टेबल के नीचे धकेल दी जाती है और इसमें रोलिंग रैक इसमें भी रिंकल पैदा होते हैं रोलिंग रैक की तरह ओवर द फैब्रिक, मीन्स नो कंट्रोल रिंकल्स, नॉट इक्वल अलाइनमेंट प्लाइज ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक प्लेसमेंट नॉट इक्वल, दैट मीन्स नो कंट्रोल टेंशन ओवर फैब्रिक। कन्वर्सली मीन इसके विपरीत, इसमें फैब्रिक रोल होता है वो फिक्स होता है on a rack that can easily be rotated the turntable, the ultimate for rotating the turntable. Turntable machine. Automatic rolling rack, in which it has a drive motor and switches that allow the machine to automatically drive itself from beginning to the end of the table and back. The machine can be fitted with an end cutter that would also automatically cut off the end for spreading. इसमें एक ड्राइवर मोटर होता है और एंड स्विच है जो इसको अपने आप इटसेल्फ टेबल के अंत मतलब एक एंड से लेकर और दूसरे एंड तक मतलब उसके पिछले पार्ट तक अपने आप चला सकती है।
मशीन के एक एंड में एक कटर फिक्स होता है जो कि ऑटोमेटिकली कट करता है स्प्रेडिंग मीन्स टेबल पर फैले हुए कपड़े को। ऑटोमेटिक रोलिंग रैक। Automatic turntable in which the common form of turntable has all the features of the automatic rolling rack may use a cut-off knife mechanism and is self-powered. It requires the spreader to manually rotate the fabric turntable rack when spreaded. The fully automatic turntable spreader is also capable of rotating the fabric. मीन्स ऑटोमेटिक टर्न टेबल एक ऐसी कॉमन फॉर्म है जिसमें सभी वही फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिक रोलिंग रैक में हैं। इसमें मे यूज़ अ कट ऑफ मीन्स कटौती, नाइफ मैकेनिज्म मीन्स चाकू तंत्र एंड इज सेल्फ पावर मतलब स्वयं संचालित है ये। इसमें स्प्रेडर को मीन्स कपड़े फैलाने वाले को फैब्रिक टर्न टेबल रैक को हाथ से घुमाने की ज़रूरत होती है। जो फुली ऑटोमेटिक टर्न टेबल है उसमें क्या होता है, स्प्रेडर ऑल्सो कैपेबल मतलब उसमें खुद इतनी क्षमता होती है कि वो खुद योग्य है वो रोटेट कर सके फैब्रिक को। ऑटोमेटिक टर्न टेबल मशीन। नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर knit fabric spreader in which tubular knit fabrics create an expansional challenge during spreading. Since two fabric layers are being kept on the table from the roll constantly, a frame is inserted inside the fabric tube to control both layers as they traverse along the machine and avoid folding of fabric. Positive feed roll arrangement minimize the tension in the fabric during spreading. In which ट्यूबुलर knit फैब्रिक मीन्स ट्यूबुलर बुने हुए फैब्रिक फैलाने के वक्त उसके दौरान एक मिसाल चुनौती बनाते हैं। इसमें एक वक्त में 2 फैब्रिक लेयर्स को टेबल में बिछा दिया जाता है और एक फ्रेम को इंसर्ट किया जाता है फैब्रिक लेयर्स के इनसाइड। इसमें फैब्रिक ट्यूब जिसमें कपड़ा लिपटा होता है वह कंट्रोल करता है बोथ लेयर्स को। कपड़े की दोनों जो परतें होती हैं क्योंकि वे मशीन के साथ चलती हैं और कपड़े को मोड़ने से बचाती हैं मतलब कंट्रोल करती हैं टेंशन को। मीन्स इसमें पॉजिटिव फीड रोल होते हैं और अरेंजमेंट करता है फैलाने के दौरान कपड़े में तनाव को कम करता है। ट्यूबुलर knit फैब्रिक स्प्रेडर मशीन। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल स्प्रेडिंग मशीन in which can be used for low quantity, the capital cost is less. First one is while spreading strips and checked, the line can be matched. And second one is low productivity. Third one is speed of the spreading depends up on the operator skill. Fourth one is the apply tension control varies at different places since more than one pupil do the spreading at the same time. So thank you. Complete today's the topic on spreading equipments. That's it.